Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the platform of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. And we are here to discuss the free content activity. It is only for you people, and we are here to bring your attention towards this free content activity in order to make you people realize that the detailed lectures of ours are very important for your NMD CAT preparation. You people must join us in that detailed session. Dear student, we have to wish you for your better future, but you know, success is not a thing which can be found easily. You people have to invest maximum time in the right direction, at the right time, at the right institute. By joining us, you may be successful, inshallah. Now, let's start the discussion of today's topic. This is actually tenses based activity, and test code E4 is about to be discussed by me. Look at the instruction. Choose the word that has the error in the following sentences and fill the circle corresponding to that letter in the MCQ response form. And according to the instruction, we have to start discussing the very first MCQ. This is on the screen now. Question number 1 is Mrs. Wicket came in with his cup of tea. Here there is no problem at all right now. She did not know because came is past and did not shows past. Whether he had been laughing, this is again past, or crying, and neither does Chips himself. Dear student, we have 4 areas which have been underlined in this statement, and only the last area, I mean the delta option, is in error because it is not following the precedent of the statement. Because precedent क्या है, सारी की सारी option past में है, but in delta we have present mode of tense. Here is the problem, and neither does Chips himself. Since Chips is singular, that's why we need a singular past mode of the helping verb did, okay, instead of does, and neither did Chips himself. In this way, we have detected the error in delta option where did must be instead of does. Okay, now move ahead. कंप्यूटर भी इसी को सपोर्ट करता है. MCQ number 2. Also be it said, no problem there. The parent whom I have offended, okay, whom I have offended, I have present tense. I have offended usually present को मोड को शो करता है. Usually comes around after a term of year and told me that his son was right and that he is thankful to me. So is be bare form present tense, ये भी present tense है, is भी present tense है, comes भी present tense है, और I have offended भी present tense है. बस यहाँ पर डेल्टा में एरर आ गया है, इसे भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए था. एंड टेल्स मी क्योंकि जो है वो बात हो रही है द पेरेंट, ठीक है, इसलिए उसके मुताबिक हमें टेल्स देना होगा, टोल्ड नहीं होगा, न टेल होगा. तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो इस वक्त हमारे पास विद एरर ऑप्शन जो है, क्योंकि एरर को डिटेक्ट करना है, स्कोर करना है, वो डेल्टा होगा. लुक, यहाँ पर एरर है. ओके, नाउ अनदर स्टेटमेंट इज ऑन द स्क्रीन, और इसमें बेस्ट ऑप्शन चार्ली को डिक्लेयर कर देते हैं. और ये चार्ली एरर वाली स्टेटमेंट क्यों है इसको जानना है अब हमने. लुक, इन 19 ओल्ड मेल्ड्रम हु हैड सक्सीडेड. लुक, ये इस वक्त हैड सक्सीडेड पास्ट परफेक्ट को शो करेगा, पास्ट परफेक्ट को. ओके, वेदर बाई एज हेड एंड हैड हेल्ड ऑफिस, अगेन पास्ट परफेक्ट है. हेल्ड ऑफिस, होल्ड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हेल्ड होगी. हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 decades. हैड डाइड सडनली. डियर स्टूडेंट, अब इस एक पहली क्लॉज के साथ जो हमने क्लॉज मिलानी है उसको आपने पास्ट परफेक्ट में नहीं रखना, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं. कॉम्बिनेशन क्या है आपको मालूम है, टेंसेस के कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट और
इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहां एरर है, यहां हैड को एलिमिनेट करना होगा, जस्ट डाइड आएगा। डाइड सडनली from pneumonia and in the interval before the appointment of a successor Chips became acting head of Brookfield. So dear student, यहाँ पर composition का issue है, यहाँ पर दो different tenses के जो है वो wrong usage का problem है। तो हमने एक part को, एक clause को past perfect में जिसमें completion हुई है पहले किसी भी activity की, और दूसरी एक्टिविटी जिसमें जो है बाद में कोई काम हुआ है वो पास्ट सिंपल में ले जाना होगा। तो यहाँ डाइड आएगा, हैड डाइड नहीं होगा। एक और एमसीक्यू देखते हैं नंबर 4। यहाँ बेस्ट ऑप्शन देखते हैं बीटा, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि 4 सेंटेंसेस हैं अल्टरनेटिव, इनमें से एक स्टेटमेंट बेस्ट है, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स है, और बाकी 3 में एरर है। देखते हैं उनमें एरर्स कहाँ कहाँ पर हैं और बेस्ट स्टेटमेंट ये क्यों है, इससे पहले पढ़ते हैं। द नेबर कंट्री सिंगुलर हो गया, इसलिए इज आ गया। द नेबर कंट्री इज प्लानिंग टू लैंड ऑन द मून, मून के साथ दी आना था, ठीक हो गया। आई होप माई ओन कंट्री विल बी डूइंग द सेम सून, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, इसलिए विल बी डूइंग होगा, विल बी डूइंग द सेम सून। अब अल्फा में एरर देखते हैं। द नेबर कंट्री विल प्लानिंग, विल के साथ कभी प्लानिंग नहीं आ सकता, विल प्लान हो सकता है। अगर विल प्लानिंग करना है तो फिर इनके दरमियान में एक और हमें जो है वो वर्ब देना होगा, बी, विल बी प्लानिंग। तो यहाँ पे एरर अकरेंस हुई है, चार्ली में देखते हैं। द नेबर कंट्री इज प्लानिंग टू लैंड ऑन द मून, आई होप माई ओन कंट्री इज डूइंग द सेम, इज डूइंग द सेम, विल बी डूइंग द सेम होना था। डेल्टा, द नेबर कंट्री इज प्लानिंग टू लैंड ऑन द मून, आई होप माई ओन कंट्री विल हैव बीन डूइंग, विल हैव बीन डूइंग नहीं, विल बी डूइंग होगा, ओके क्योंकि विल हैव बीन डूइंग कोई टाइम फ्रेम नहीं साथ में दिया गया, इसलिए नहीं आ सकता। एक और स्टेटमेंट देखें नंबर 5 में, बेस्ट ऑप्शन देखें डेल्टा, और ये क्यों है बेस्ट जरा गौर करें। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 73, हिज वर्क विल नेवर डाई। ठीक है, ये ऐसी बात है, विल नेवर डाई यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ऐसी बात है कि जो है वो फॉर द टाइम्स टू कम के लिए बिल्कुल दुरुस्त है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो ज़ाहिरी बात है एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी जिनका इंतकाल माजी में हो चुका, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही जाना है, लेकिन उनका काम तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रहेगा ना। उस काम ने वो अचीवमेंट पास्ट में हुआ ज़रूर है, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स और उसके इफ़ेक्ट्स और उसके जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है वो मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। अल्फा में एरर देखें, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैड डाइड नहीं जस्ट डाइड, क्योंकि पास्ट के इवेंट को पास्ट सिंपल में रखेंगे, हैड डाइड तो जो है वो बहुत करीब के लिए यूज़ किया जाता है। और बीटा में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 73, हिज वर्क विल नेवर डाइड, विल के साथ कभी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी, डाई आएगा। और चार्ली में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैड बीन डाइड, हैड बीन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ये टेंस यूज कभी नहीं हो सकता इस तरह की स्टेटमेंट में, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू में चलें। नंबर 6 में देखते हैं, बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है, और क्यों है और बाकी ऑप्शन में एरर कहाँ पे वो भी जरा देखते हैं। द आर्टिफैक्ट्स प्लूरल हो गया, द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सम डेड सिटीज टेल, चूंकि ये प्लूरल हैं आर्टिफैक्ट्स इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, यानी टेल आएगा, टेल्स नहीं आएगा। टेल्स सिंगुलर कंसीडर किया जाता है किसी भी सिंगुलर एंटिटी के साथ, और टेल प्लूरल कंसीडर किया जाता है। टेल दैट दियर, चूंकि आर्टिफैक्ट्स प्लूरल हैं ये, इसलिए दियर उनके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो आएगा प्लूरल। दियर ड्वेलर्स टू न्यू द डेटी टू न्यू, चूंकि पास्ट है, फाउंड है, तो यहाँ पे भी पास्ट होगा, फाउंड एंड न्यू। फाउंड द डेटी डैट, अब डेटी जो है वो तो जाहिर बात है जो है वो अदर देन इस्लाम दूसरे रिलीजन्स के अंदर जो है बहुत सी देवी देवताओं का जो है वो इल्म जो है वो मौजूद है, और वो उनके बारे में कुछ अकायद हैं, तो उनके ख्याल में ये मुर्दा चीज़ नहीं है, डेटी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए द डेटी सिंगुलर है, डैट उसी के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ और ये भी सिंगुलर बन गया, और इसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो भी सिंगुलर होगा, द डेटी डैट रन्स द यूनिवर्स। ओके, इस तरह से डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है। अल्फा में एरर देखते हैं, द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सम डेड सिटीज टेल डैट
दियर dwellers टू वर नोइंग नहीं होता, नो के साथ आप ing फॉर्म ना यूज़ करें, इसको जो है वो आप सिंपल फॉर्म में रखें, ठीक है। नो होगा या न्यू होगा या विल नो होगा, लेकिन वर नोइंग या वॉज नोइंग या इज नोइंग नहीं होता। ओके, बीटा ऑप्शन, द आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन सम डेड सिटीज टेल दैट दियर dwellers टू न्यू द डेटी दैट रैन, डेटी के साथ रैन नहीं रन्स आएगा, क्योंकि वो उसे एग्जिस्ट फॉर्म में जो है वो देखते हैं, यानी उसे जिंदा जो है वो एक एंटिटी समझते हैं और प्रेजेंट में समझते हैं। चार्ली, द आर्टिफैक्ट्स हैड फाउंड नहीं, फाउंड जस्ट फाउंड, हैड नहीं आएगा, पास्ट में जाना है। इन सम डेड सिटीज टेल दैट दियर dwellers टू न्यू द डेटी दैट रन्स द यूनिवर्स, तो यहाँ हैड अननेसेसरी आया है, इसको एलिमिनेट करना होगा, स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो डेल्टा इज द बेस्ट वन। नंबर 7 बेस्ट ऑप्शन देखिए चार्ली, क्यों है? फॉर क्वाइट सम टाइम हमने बात की है, फॉर यूज किया है सम टाइम के लिए, टाइम की बात होगी तो फिर फॉर आ गया। फॉर क्वाइट सम टाइम आई हैव बीन, यानी फ्यूचर या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। आई हैव बीन, टेंस की टाइम की बात हुई तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हुई। आई हैव बीन पेंटिंग अ पिक्चर एंड आई शैल हैव फिनिश्ड, और जब टाइम फ्रेम की बात होगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ किया गया। आई शैल हैव फिनिश्ड इट बाय द इवनिंग, ये बाय द इवनिंग जब आया तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अल्फा में एरर देखते हैं। फॉर क्वाइट सम टाइम आई हैव बीन पेंटिंग अ पिक्चर एंड आई शैल हैव फिनिश, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। शैल हैव के बाद फिनिश्ड आना था, एरर आ गया। बीटा, फॉर क्वाइट सम टाइम आई एम पेंटिंग, आई एम नहीं, फॉर सम टाइम के लिए यहाँ हैव बीन पेंटिंग होना था। डेल्टा में आए, फॉर क्वाइट सम टाइम आई विल हैव बीन पेंटिंग, टेंस की शफलिंग कर दी गई है, यानी ये वाला टेंस अभी नहीं आना था, पहले हमने इसे जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाना था, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में जाना था। एक तो ये एरर है ये पूरा का पूरा। दूसरा, एंड आई शैल फिनिश इट बाय द इवनिंग, आई शैल फिनिश फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है, जबकि बाय द इवनिंग टाइम फ्रेम आ चुका है। जब टाइम फ्रेम आए यानी लिमिटनेस आए तो फिर उसके बाद जो है फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट, इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इसलिए चार्ली को बेस्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। एक और एमसीक्यू में आ जाए, नंबर 8 में बेस्ट ऑप्शन देखते हैं बीटा है, और क्यों है ज़रा गौर करें। फेमिन सिंगुलर है इसलिए हैज़ उसके साथ आया है, फेमिन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, ये हैज़ बीन क्यों आया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों है ये इसलिए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि यहाँ पर सिंस आ चुका है। जब सिंस और फॉर यूज़ होता है, और क्यों आया है, बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए आया है सिंस, ठीक है। तो फिर हमें कौन से टेंस में जाना होगा, इस टेंस में जाना होगा। फेमिन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। अल्फा में एरर देखें, फेमिन वॉज अ प्रॉब्लम, वॉज नहीं हैज़ बीन अ प्रॉब्लम था, ठीक है। और ये प्रॉब्लम था नहीं, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली हमारे साथ है फैमिन का, यानी कहत साली का। फैमिन इज अ प्रॉब्लम, इज नहीं हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, क्योंकि सिंस आ चुका है, बिगिनिंग ऑफ टाइम आ चुका है। फैमिन हैव बीन, फैमिन सिंगुलर है, हैव इसके साथ नहीं लग सकता, हैद आएगा। ओके, नाउ अनदर एमसीक्यू नंबर 9 बेस्ट ऑप्शन बेटा डेल्टा है। पढ़ते हैं क्यों बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा। वाइल, जब वाइल आ गया तो कंटिन्यूटी को शो करेगा, इसलिए यहाँ पे वॉज ड्राइविंग है, ठीक है, कंटिन्यूटी है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार आई सा अ फ्यू पीपल, आई सा अ फ्यू पीपल हु हैड बीन, पीपल प्लूरल है तो हु भी प्लूरल बन चुका, हु हैड बीन क्योंकि ये इसका एंटीसीडेंट है, पीपल एंटीसीडेंट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन ने अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करना है। ओके, और उसके मुताबिक फिर आगे वर्ब सप्लाई करना है। हु हैड बीन क्वारलिंग फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, जब फॉर आया तो फिर हाउ लॉन्ग भी आया, ठीक है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है। अल्फा में एरर देखते हैं, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग द कार आई सा अ फ्यू पीपल हु हैव बीन, हैव नहीं आएगा, हैड बीन आएगा, क्योंकि आई वॉज यानी कोर यानी मेन यानी मेजर क्लॉज जो है पास्ट में है, तो पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। आपको मालूम है कि पास्ट के बाद पास्ट नहीं आना है, प्रेजेंट नहीं आ सकता। प्रेजेंट एक ही सूरत में आ सकता है कि पास्ट के बाद आप अगर किसी नेक्स्ट क्लॉज के अंदर कोई कंपैरिजन देखें या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ डिस्कस करें, या फिर तीसरी ऑप्शन है कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, तब उस सूरत में कोई पास्ट के बाद प्रेजेंट आ सकता है। अदरवाइज अगर तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी ना हो तो फिर पास्ट के बाद पास्ट ही आएगा, लिहाजा यहाँ हैव नहीं आ सकता, हैड आना था। बीटा, while I was driving the car I saw a few people who had been quarreling since,
कॉलिंग सिंस नहीं, क्योंकि वो कहता है कि आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब है कि जब सर्टेनिटी और श्योरिटी ना हो तो फिर फॉर लगाया जाता है, सर्टेनिटी और श्योरिटी के साथ ही सिंस आता है। जब एग्जैक्टनेस पता हो तो फिर यहाँ पर सिंस नहीं आ सकता। चार्ली, वाइल आई ड्रॉव, वाइल आई ड्रॉव नहीं, क्योंकि ड्रॉव तो जो है वो स्टैग्नेशन को शो करता है, वो किसी एक इवेंट को वंस हैपनिंग को शो करता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी को आना था, आई वॉज ड्राइविंग। जब आप वॉज और ड्राइविंग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो कंटिन्यूटी शो होगी। ड्रॉप की वजह से स्टैग्नेशन है, स्टिलनेस है, इसलिए ये एरर बन गया है इस स्टेटमेंट का, ये इस स्टेटमेंट को ले डूबा है। दूसरी बात ये कि हमने ये इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि टेंसेस के अंदर जो है वो कौन कौन से टेंसेस के कॉम्बिनेशन है। अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो ये भी एक मिस्टेक होगी। लास्ट एमसीक्यू में चलते हैं नंबर 10th में और देखते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, चार्ली। और ये क्यों है ज़रा गौर करें, यहाँ पर भी जो है वो कम्पैक्टनेस है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। गौर कीजिएगा, आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न्ड, ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मा वेंट बैक, अब ये वेंट जो है ना, ये वेंट बैक, ये पास्ट सिंपल है, ये बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन है। वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड, पास्ट सिंपल ही है, फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज। अल्फा में एरर देखते हैं, आफ्टर आर्थर रिटर्न्ड, रिटर्न नहीं होना था, हैड रिटर्न्ड होना था। ओके, ये एरर। बीटा में आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न्ड, सेम मिस्टेक है, रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा हैड गॉन, नॉर्मा हैड गॉन नहीं होगा, नॉर्मा वेंट बैक होगा। और इन्होंने यहाँ मिस्टेक क्या की है कि पहले जो है पास्ट परफेक्ट आना था, बाद में पास्ट इंडेफिनिट आना था। वैसे शफलिंग हो सकती है, लेकिन वो काम, वो एक्टिविटी जिसमें कंप्लीशन हुई हो, जो पहले मुकम्मल हुआ, उसे पास्ट परफेक्ट में लेकर जाते हैं। तो आर्थर जो है वो अपनी बुक की तरफ रुजू करता है, ये एक्टिविटी पहले हुई है, नॉर्मा बाद में जो है किचन में गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हैड गॉन नहीं आना था, वेंट बैक आना था, यहाँ हैड रिटर्न आना था। डेल्टा, आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड, यानी कि ईडी लगना था क्योंकि पास्ट मोड है, फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस होगा। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द एरर्स फाउंड in different MCQs, and I wish you best of luck so that you may secure high score in your upcoming exam. I wish you may join us in our detailed lectures and study plan so that you will be a successful candidate. God bless you.